आइए आपको सीधे ले चलते राइट्स इन डायलॉग, जहां इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर दे रहे हैं संबोधन। Who will benefit if there is no order? I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would, test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. So, first of all, I think we should all, understand the importance of an order. Now, the old order, it was an order. It was a product of its times. But why I felt that its virtues were exaggerated was, I think the rule maker and the rule taker had somewhat different perspectives, because I also said in the same interview, if you were at the receiving end of some of those rules or the application of those rules, we had issues. And let me give you 2 or 3 practical examples. If you capriciously, if it suits your interest, somebody is good, not good, well, I'll make up my mind how they're going to do, and you apply that order to the same country on the same issues differently. Take Afghanistan, okay? So the same Afghanistan, the same Taliban, which was an outlier, was welcomed in the Doha process, was welcomed in Oslo, an outlier, was welcomed in the Doha process, was welcomed in Oslo. Apparently at that time people were okay with it. Today again we are going back saying, Taliban is doing all these not so good things. Now, if they were doing all of that, what was discussed in Oslo and Doha? You had a British general who described them at that time as, they are country boys with their own honor code. Now, so when it suits you to deal with the Taliban, they are okay. When it is not, they are not okay. You are an extremist today, you wear a suit and tie, you are okay. I think I have a problem with that order. Let's give you a second example. We all speak of sovereignty and territorial integrity. All of us agree. It's a vital principle. It's the bedrock of global rules. After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that old order. Now, I can give you many more. We speak today of political interference. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. When other countries come into the West, it seems to have a very malign intention. So I think we need, if to have an order, there must be fairness. I agree with you, Dominic, we need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. A strong, a global order must have some basic consistency of standards. We have military coups to our east in Myanmar. They are no-no. We have them even more regularly to the west, where. They seem to be okay. So I think it's important to audit the working of the world for the last 8 decades and be honest about it, and to understand today that, the balances, the shareholdings in the world have changed. We need a different conversation. We need, frankly, in that sense, a different order. I move now to Dubai Abul Hol. The order-disorder dialectic is perhaps historically most keenly felt or pronounced in your part of the world, the Middle East. You represent an Arab voice, a West Asian voice on the panel.
100 years ago, Western powers began building peace between double quotes in the Middle East. They failed spectacularly. They're still failing. Now we have the paradox of an Arab country hosting and brokering peace between two warring European nations. How can we, and I purposefully use we here, do it better? First of all, it's a pleasure to be with you all here today. And I have to say, hearing the sentence, 100 years ago, Western powers sought to bring peace to the Middle East sounds eerily similar to what we're hearing today in the news. But the difference is, I would say, 100 years ago, what Western powers actually did in the region was not bring peace. It was enforcing colonial imposition, arbitrary borders, and governance models that were frankly parachuted into the region. They were not built by the region. And so what we see today is the result of it being not peace, but fragility. And it's a legacy of externally dictated arrangements that often ignored the political, social, and perhaps more importantly, economic realities of the region. But the paradox you mentioned is indeed striking. An Arab country and a Gulf country today is, in fact, attempting to broker peace. तो रायसीना डायलॉग में आप सुन रहे थे जो जयशंकर हैं हमारे विदेश मंत्री, उनका संबोधन। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंटरनेशनल ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर किस तरह से पावर टेकर और पावर गिवर का जो रोल है वो कैसे बदला है, इसका जिक्र उन्होंने किया। और सवाल यहाँ पर ये है कि किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर अलग अलग सिचुएशंस में काम कर सकता है, जिसका उन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिया अफ़गानिस्तान को लेकर। और जो सवाल वहाँ पर पूछा गया कि कैसे वेस्ट यानी पश्चिमी देश जब युद्ध विराम की बात करते हैं मिडिल ईस्ट के लिए, लेकिन एक वक्त ये था कि औपनिवेशिक काल के साथ वो आगे बढ़ना चाहते थे। इस तरह के कई मंथन हमें सुनने को मिलेंगे रायसीना डायलॉग में, क्योंकि बात यहाँ पर प्लैनेट, पीस और पीपल की हो रही है। वापस लौटते अपने कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे की तरफ और सीधे रुक करते इस वक्त की टॉप लाइन्स का। आधा दर्जन देश भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए तैयार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का ऐलान। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16% से ज्यादा का इजाफा। अभी तक करीब 25,87,000 करोड़ का कलेक्शन। 4,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड भी किए गए जारी। इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की राह और आसान। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऐप हुआ है लॉन्च। अब चुटकियों में आप कर पाएंगे आवेदन। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंकों की बढ़त के साथ 74,503, निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा चढ़कर 22,616 पर कर रहा है काम। तो तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। दुनिया भर के बाजारों से शुरुआत करते हैं, देखते गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज क्या रहे। हालांकि पॉजिटिव ओपनिंग हुई है सेंसेक्स की, तो गिफ्ट निफ्टी भी 22,740 का लेवल, 132 अंक अप। वहीं भारतीय शेयर बाजारों ने दूसरे दिन भी सिक्सर लगाया, क्योंकि 400 अंक ऊपर बाजार खुला है। आप देख सकते हैं 74,503 का लेवल, 333 अंकों की बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। और सबसे ज़्यादा खरीदारी कहाँ देखी गई वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन निफ्टी का सूरत हाल भी ले लेते हैं एक बार कि निफ्टी किन स्तरों पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 22,616। तो 2 सेक्टर्स जहाँ सबसे ज़्यादा खरीदारी दिखाई दे रही है वो है मेटल्स और रियलिटी, और लगभग 1 से 1.5% की बढ़त के साथ ये दोनों सेक्टर्स काम कर रहे हैं। टॉप गेनर्स के चार्ट पर डालते हैं नजर एक बार, वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां मजबूती नजर आ रही है। हिंडाल्को मेटल का दिग्गज काउंटर, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एल&टी, एम&एम चार्ट को लीड कर रहा है। मेटल काउंटर, आईसीआईसीआई बैंक, ये तमाम जो 2 बैंकिंग के दिग्गज काउंटर्स चार्ट पर मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त इजाफा देखा गया है, उसका असर बैंकिंग सेक्टर पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे सरकार की रेवेन्यू पोजीशन बहुत मजबूत होती है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव संकेत है। लेकिन मुनाफा वसूली कहाँ हावी है वो भी देख लेते हैं एक बार। एचसीएल टेक, बजाज फिनांस, मारुति और ओएनजीसी, इस वजह से
बजाज की अगर बात की जाए तो बजाज ग्रुप ने लाइफ और जनरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ जॉइंट वेंचर्स में भाग लिया है, इसलिए स्टॉक एक्शन में यहां पर नजर आ रहा है। तो वेल्थ क्रिएशन डे है आज, और आज के लिए किस तरह से पोर्टफोलियो की तैयारी की जाएगी ये भी देखना होगा। क्या निचले स्तरों पर बाजार बंद होगा या फिर यही तेजी पूरे दिन कायम रहेगी, ये हम देखेंगे। और तो ये तो बात की हमने भारतीय शेयर बाजार को लेकर। अब रुक करते एसबीआई की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की तरफ। यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने की संभावना, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, और इस बीच भारत वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के माध्यम से अमेरिका तक नए व्यापार मार्गों पर काम किया जा रहा है। एसबीआई रिसर्च की जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत का यूएस ट्रेड रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रभाव जो है अगर हम तमाम क्षेत्रों पर देखें तो ना के बराबर पड़ने वाला है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि देश ने अपने जो एक्सपोर्ट है उसमें डाइवर्सिफिकेशन किया है, साथ ही वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जा रहा है, यानी कि अब हम एक पर्टिकुलर सेक्टर पर निर्भर नहीं है जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, और इसीलिए अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन कर हमारे पास ज़्यादा मौके हैं। और इसके अलावा भारत वैकल्पिक क्षेत्रों की भी खोज कर रहा है, उन मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो यूरोप के माध्यम से अमेरिका तक नए मार्गों पर काम कर रहा है कि भाई अगर एक मार्ग से एक्सपोर्ट नहीं हो पाता ड्यू टू टैरिफ, तो हमारे पास और जो अलग विकल्प है या फिर ऑप्शंस हैं वो क्या है, और नए सप्लाई चेन एल्गोरिदम को फिर से तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि निर्यात में करीबन 3 से 3.5% की ये जो सीमा है उस दायरे में रहने की उम्मीद है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों मोर्चों पर अगर हम उच्च निर्यात लक्ष्यों की बात करें तो उसे सुधारा जाना जरूरी है। और अब बात करते हैं रायसीना डायलॉग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर कई लाभकारी मुद्दों पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है, यानी कि एक डायलॉग के माध्यम से कंसेंसस डेवलप करने की बात की जा रही है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को वर्तमान $200 अरब से बढ़ाकर 2030 तक $500 अरब तक पहुंचाना है, यानी डबल डिजिट में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसी महीने अमेरिका के जो यात्रा पर गए, वहां पर समकक्षों के साथ व्यापार वार्ता करने के बाद वो वॉशिंगटन से लौटे हैं, और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत दोनों देशों के लिए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिससे बहुक्षेत्रीय लाभ पर फोकस किया जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि कर के मोर्चे से जुड़ी है और पॉजिटिव खबर है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 16 मार्च 2025 तक देश में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है उसमें 16% का उछाल देखा गया। आंकड़ों की माने तो अभी करीब 25,87,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ, यानी कि 16% का उछाल अच्छा खासा उछाल है, जिसमें रिफंड जो है वो भी जारी किए गए, और अभी जो करीब कलेक्शन है वो 25,87,000 करोड़ का है। और इसी साल अब तक कलेक्शन तो आपने देखा, वहीं 4,70,000 करोड़ से ज़्यादा के रिफंड्स भी करदाताओं को जारी किए जा चुके हैं। बीते साल के मुकाबले में अगर हम इसे ईयर ऑन ईयर देखें तो 32% की बढ़त को ये दिखाता है। इस तरह देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो संग्रह है वो 13% बढ़ा, जो कि करीब 21,87,000 करोड़ रहा। अभी तक एडवांस टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 10,44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा, जो कि 14% से ज़्यादा की ग्रोथ को दर्शाता है। यानी टैक्स कंप्लायंस बढ़ रहा है, लोग टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, और इससे रेवेन्यू जनरेशन और जब हम नौकरियों की बात करते हैं उसमें इजाफा होने की उम्मीद जगती है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगातार इजाफा, और उस लिहाज से अब आप देखिए रिफंड्स, आपको रिफंड जारी होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जेब में पैसा आएगा, पैसा खर्चेंगे, वो पैसा वापस कहाँ जाएगा? वो पैसा वापस जाएगा इकोनॉमी में, और ये सर्कल यूं ही चलता रहेगा अगर कर के मोर्चे पर जिस तरह से कई मामलों पे सरलीकरण किया गया है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां माननीय नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ले रहे हैं हिस्सा, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन बिष्ट जी,
केंद्र सरकार में मंत्री माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, माननीय सांसदगण, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व दिल्ली की जनता ने दिया है और जिस भवन में बैठे हैं वो भवन आजादी के संघर्षों का साक्षी रहा है। ये भवन महान स्वतंत्रता सेनानियों, महान विचारकों के अभिव्यक्ति का सदन रहा है और इसी भवन से आजादी की लड़ाई के साथ हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने की शुरुआत की। इसलिए इस भवन का बहुत बड़ा महत्व है और आप सबको ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिला है और इसलिए इस दायित्व जिम्मेदारी को हम कैसे निभा सकते हैं। जो रेखा जी ने कहा कि हम दिल्ली को, जो देश की राजधानी है, उस देश की राजधानी के अंदर हम आधारभूत ढांचा, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ लोगों की अपेक्षाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर चुने हुए जो प्रतिनिधि है अलग अलग विधानसभा से आते हैं और दिल्ली दुनिया के अंदर वह राजधानी है जहां सभी राज्यों की विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं, धर्म की विविधताएं हैं, अलग अलग कल्चर की विविधताएं हैं और इसीलिए एक मिनी भारत के रूप में दिल्ली स्थित राजधानी है जहां अलग अलग प्रदेशों के लोग रहकर आते हैं, अपने रोजगार के लिए आते हैं, आर्थिक उपार्जन के लिए आते हैं। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूरा करें और इसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई, दिल्ली विधानसभा के अंदर आपकी चर्चा, संवाद, लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना ताकि देश के अंदर एक नया संदेश जा सके और इसीलिए केवल आप एक विधानसभा के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपका चिंतन पूरे राज्य के विकास के साथ इस राज्य की जनता का विकास और उनकी सामाजिक कल्याण की भी परिवर्तन करने का दायित्व है और ये सदन उन करोड़ों जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का सदन है। इसलिए मेरा मानना है कि दिल्ली की जनता ने आपको बड़ी अपेक्षाओं के साथ भेजा है। नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं
तो जब आकांक्षाएं ज्यादा होती है तो हमें काम की विचार भी उस दृष्टिकोण से करना पड़ता है, और इसीलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हम सदन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, संवाद होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, मंथन होगा, ताकि हम विधानसभा के इस भवन के माध्यम से एक श्रेष्ठ विधायक होने के साथ साथ हम जनता के उन सब चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी निकालें। और इसलिए मेरा मानना है कि विधानसभा की इस कार्रवाई के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ श्रोता के रूप में बैठें, देर तक विधानसभा में बैठें, हमें बोलने का अवसर नहीं हो तो भी सुनने का अवसर का लाभ उठाएं। जितना सुनने का अवसर का लाभ उठाएंगे उतनी आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे। दिल्ली विधानसभा में जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर लोकसभा स्पीकर को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो सदन है गरिमापूर्ण है, यहाँ चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा का मकसद किस तरह लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर जो नवनिर्वाचित विधायक यहाँ आए हैं, किस तरह से वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, उनका जो अपने तमाम संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी कुछ खबरें और जुड़ रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और आपको सीधे वापस लिए चलते हैं रायसीना डायलॉग, जहां इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर फिर से बात कर रहे हैं। Always been kind to us, which has not always been accommodating at us. But we have, in that sense, developed a certain skill of which you make some reference. But a way of really, I would call it both a tactical skill but a long view. That we have not a 5-year, 10-year necessarily horizon and understanding of ourselves. And for today, as the most populous country in the world, as the 5th largest economy of the world, perhaps 3rd by the end of this decade, in various other domains you can see, we are still doing more, we are contributing more. I think the idea of a multipolar world, and where India itself is concerned, to think of how to become a leading power at some point of time. I think these are the global South character, the democratic character, the adapting long view aspect, and a multipolar world towards which we are working. I think if you keep these in mind, a lot of what we do in different situations would make sense. Now, you put your question in a certain way. I understand why you want to elicit a certain reply from me. But I want you to think back, because you began by saying 23, 24, 25, how has it changed? I would argue many of the positions we took in 23 and 24 on this very platform, which at that time were not necessarily liked, today have stood the test of time. True. Dubai Abul Hol, I'd like to take that same point about taking the long view to your part of the world. Sitting at conferences like this one, discussing sovereignty, territorial integrity, agency of domestic decision making,
this sounds. आई थिंक डायलॉग में जो पैनल डिस्कशन चल रहा है जिसमें लगातार स्पीकर्स बोल रहे हैं, उसमें हमने फिर से सुना एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, जो मल्टी पोलर ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि आफ्टर 2 वर्ल्ड वॉर्स और जिस तरह से वर्ल्ड का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, उसके बारे में हो रही थी चर्चा। और वक्त चला कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं अर्थ जगत की बड़ी खबरों के साथ। अंदाज रहेगा फटाफट। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने वित्त वर्ष 2024-25 पूरा होने से पहले 5 लाख करोड़ रुपए का जीएमवी पार कर लिया है। ये उपलब्धि सार्वजनिक खरीद के लिए जेम के तेजी से विस्तार को दिखाती है। इससे एमएसई, स्टार्टअप और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को 90,60,000 घर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि इस योजना के तहत मंत्रालय ने कुल 118,64,000 मकानों को मंजूरी दी, जिनमें से 112,46,000 मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए योजना की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पिछले 10 सालों में करीब 16 लाख करोड़ रुपए मूल्य की फंसी हुई संपत्ति को बट्टे खाते में डाला गया है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों और बैंकों के बोर्ड की ओर से अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए को बट्टा खाते में डालते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया और टाटा मोटर्स ने अप्रैल से वाहनों की कीमतें बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। ये कंपनियां कच्चे माल की बढ़ती लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए इस साल दूसरी बार ये कदम उठा रही हैं। मारुति सुजुकी अपने सभी मॉडल की कीमतों में 4%, वहीं टाटा मोटर्स 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। एरिक्सन, वोल्वो ग्रुप और एयरटेल ने एक रिसर्च पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस साझेदारी के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सटेंडेड रियलिटी, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी और एआई की क्षमता का पता लगाया जाएगा। 5G और 5G एडवांस्ड का लाभ उठाकर इस सहयोग का उद्देश्य औद्योगिक संचालन को बदलना, वर्कफोर्स ट्रेनिंग को बढ़ाना और रियल टाइम प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ावा देना है। भारत की पेपर इंडस्ट्री में वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत रिकवरी देखने को मिल सकती है। साथ ही मार्जिन में भी सुधार होने की संभावना है। केयरेज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक वुड पल्प की कीमतों में स्थिरता और आयात में कमी के कारण वित्त वर्ष 2026 में पेपर इंडस्ट्री की ऑपरेटिंग मार्जिन में लगभग 2% का सुधार होने का अनुमान है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी को अमेरिका के ब्रैंटन हॉल में गोल्ड एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कंपनी को ये सम्मान ए मार्वल्स लीडरशिप प्रोग्राम के लिए सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम श्रेणी में दिया गया है। ये लीडरशिप टैलेंट और कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दिखाता है।